Alright, जी, next question. Does creating fake financial crisis help anyone? Hello, Mr. Junaid. Hope you're well and enjoying life to the fullest. I've been an avid watcher of this channel from teenage. Now I'm 24, who's been earning for a while now. My father was a successful businessman who provided us a comfortable lifestyle in an expensive area of Lahore. However, despite our financial stability, the household atmosphere felt like we were in constant financial crisis. As children, we never demanded luxuries. We'd buy a 3,000 rupee ki jacket instead of a 20,000 rupee one, and we'd question spending even 40 rupees on a biscuit. I've inherited this frugal mindset from my father, and I think twice before any purchase. I understand that living frugally helps save money, but I've noticed a pattern in my father and others. They live in a state of perpetual fear about losing their wealth, constantly saying business is bad, while their circumstances suggest otherwise. My question is, does this extreme frugality, this हाथ रोक के खर्चा, living as if in crisis, even when you're not, cause people to spend below their actual financial capacity, so much so that they become unable to enjoy the life they have actually earned. तो जैसे कि आपने सुना कि ये हमारे एक लाहौर के 24 ईयर ओल्ड लिसनर हैं जिनके वालिद साहब ने बिजनेस बनाया और डिस्पाइट द फैक्ट दे वर क्वाइट कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, वो एक हमेशा कांस्टेंट फेयर में रहते थे. अच्छा, इन्होंने भी एक आदत इनहेरिट कर ली of being frugal, which is not wrong. देखिए, being mindful of what you're spending on and where you're spending is frugal. It's perfectly fine, but इतना insane level पे जाना कि आप अपनी reality को ही question करो, मतलब like you are cash rich, but अगर 40 रुपए के बिस्किट पे भी सोचना पड़े, then what's the point of this entire business? मुझे समझ नहीं आता. Why can't people find a perfect and healthy balance? अब ये देखिए, जो scarcity mindset है ना, ये हमारी रगों में दौड़ता है. And I'm sure your father, as he was growing his business, उन्होंने अपने आसपास बहुत मिसालें देखी होंगी जो रातों रात सड़क पे आ गए. वो बातें करते होंगे, जी फलाने मिठाई वाले रातों रात सड़क पे, फलाने बेकरी वाले इधर आ गए, टेक्सटाइल वालों का ये हो गया, फलाना ढिमकाना वगैरह. अब देखें उसके रीजंस क्या है, ये तो नहीं उन्होंने बताया या डिस्कस किए. सबके ज़ाहिर अलग अलग रीजंस होते हैं. किसी के बच्चे अय्याशी में पड़ जाते हैं, या वो बाप का बिजनेस संभाल नहीं पाते वगैरह वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें, या फिर ये कि XYZ रीजंस होते हैं. तो वो उसको बालाए ताब नहीं लाते और वो समझते हैं कि बस चूंकि उनका रातों रात डूब गया तो ये भी डूब जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ फेथ इन योर बिजनेस. अगर बिजनेस, देखें, अप्स एंड डाउन आ सकते हैं. मेरा इंटरनेट का बिजनेस है सारा, इंटरनेट ही अगर बंद हो जाए मैं क्या बेचूंगा. मगर इतना तो पता होना चाहिए इंसान को कि यार मेरे पास स्किल तो है, अगर वो इस जाविये से नहीं तो किसी और तरीके से मैं कर लूँगा, किसी और तरीके से. मतलब ये नहीं कि सड़क पे नहीं आऊँगा मैं. एक तो यू नीड टू सेव इनफ कि आपके पास साल 2 साल का कम से कम होना चाहिए मतलब बैकअप. खुदा ना खास्ता को जंग छिड़ जाए, ये हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन्फ्लेशन आ जाए, 10 मसले. तो सो यू नीड टू हैव दैट मच. मगर उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उस चक्कर में जीना ही छोड़ दें और बिल्कुल ही देखिए, it has to do a lot with rather than when you're buying something, rather than can I afford this, the question should be, do I need this? Alhamdulillah, I do extremely well for myself. I still have an iPhone 15. My wife has an iPhone 17 out of love, for sure. I can easily walk in and buy an iPhone 17. Not a problem. कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे ऐसा, या मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, या मुझे जोड़ना नहीं पड़ेगा. अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन. तो मेरा क्वेश्चन ये है, डू आई रियली नीड इट? बिकॉज माई आईफोन इज प्योरली कैमरा. I can't type on an iPhone, so which is why I still use a nothing phone, and my nothing phone does the job extremely well. उसके लिए भी चलो अगर एंड्रॉयड रहना है तो उसमें नहीं जी गैलेक्सी फोल्ड होना चाहिए और वो काशिफ ज़मीर की तरह ऐसे 3. यार पाकिस्तान में लोग कहीं भी जाते हैं किसी इवेंट पे, ऐसे 3 फोन लेके क्यों जाते हैं? व्हाई द फक मैन, इज कॉलिंग यू मैन, ऐसे क्यों जाते हैं? सो मुझे वो भी ठरक नहीं है. सो नथिंग फोन डज द जॉब. तो मैं रखने को तो भाई मैं भी गोल्ड प्लेटेड रख लूँ वगैरह वगैरह, मसला नहीं. मगर डू आई रियली नीड इट? सो माई आईफोन इज प्योरली कैमरा एंड इट डज अ फंटास्टिक जॉब. तस्वीरें आप देखते ही रहते हैं व्हेनेवर आई शेयर. तो उसके और 17 के कैमरे में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. ठीक है, स्पीड की वजह से इवेंचुअली आई विल, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपना फ़ोन ढीला कर देते हैं पुराना वाला. सो एंड आई ऑलवेज स्किप अ जनरेशन. आई नेवर हैड अ 14, आई हैड अ 13 से 15, 15 से 17. आई कैन बाय ईजिली, बट डू आई रियली नीड इट? सो दिस इज़ बीइंग सेल्फ अवेयर कि ज़रूरत क्या है और शौक क्या है. शौक तो बहुत है भाई, शौक तो बहुत है, बट ज़रूरत क्या है. सो आई लिव बाय दैट. और मैं आपको भी यही बोलूँगा कि
नो मैटर आप जिंदगी किसी भी स्टेज पे आ जाएं, वांटिंग और नीडिंग में फ़र्क रखिएगा। एंड दूसरी चीज़ ये कि आई एब्सोल्युटली डोंट हैव द विल टू कि मुझे किसी को कुछ प्रूव करना है, हेंस यू डोंट सी एनी लोगोज ऑन मी, आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग। वेल्थ शुड बी फेल्ट इनसाइड। अगर वो फोर्सफुली दिखानी पड़ी है दैट मीन्स कि आप दिखा नहीं पा रहे, इसलिए आपको लोगोज की ज़रूरत पड़ रही है। गेट इट? खैर, वी नीड टू बी क्लियर अबाउट फ्रूगलिटी के ये फ्रूगल होता है या फ्रूजल होता है, फ्रूगल ही होता होगा, आई एम नॉट श्योर। यू नीड टू स्पेंड इंटेंशनली, यू नीड टू अवॉइड वेस्ट, गैर ज़रूरी अशिया से दूर रहें वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप इस तरह है कि आपके बच्चे 40 रुपए के बिस्किट को तरस रहे हैं तो ये एक मिजरेबल ज़िंदगी है। देखिए, एक्सट्रीम ऑफ एनी थिंग इज़ बैड, ठीक है? एक्सट्रीम इस एंड पे अगर आप जाएं कि आप इतनी स्पेंडिंग करने के आप डेट में आ जाएं, दूसरों को दिखाने के चक्कर में आप कर्जे पे कर्जा आप सड़क पे आ जाए, वो भी बुरा है। और ये भी बहुत बुरा है कि आप 200 रुपए का घर पे हिसाब लेते फिरें, या फिर जो है आप में इतनी भी नहीं हो कि आप किसी को टिप दे सके डिसेंट, या आप जो है आपके बच्चे बिस्किट टॉफ़ी मतलब वो उनकी फैंटेसी ही रह जा रहे। भाई बंदा फिर काम क्यों कर रहा है? फिर इतने बड़े बिजनेस से बेहतर है आप कोई मामूली सी छोटी सी दुकान खोलें, छोटा सा काम करें। अगर आपने रहना ही, इसको कसम पुरसी की हालत कहते हैं, ठीक है? तो अगर आपने उस हालत में रहना है तो दिन वाई मतलब इतना ही बड़ा सेटअप, क्योंकि जितना बड़ा सेटअप जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा प्रेशर, उतने ज़्यादा सुनने वाले लोग, कहने वाले लोग वगैरह वगैरह। तो इतना मैनेज अगर रहना ही इस तरह है, आई अंडरस्टैंड वो स्केर्सिटी माइंडसेट उनका माहौल देख के बना है। एंड ऑफ कोर्स वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे यू आर योर ओनली होप और कोई आपको बचाने नहीं आएगा। एंड देयर इज नो सिस्टम, देयर इज नो वेलफेयर, देयर इज नो रिहेबिलिटेशन ऑफ बिजनेसेस किसी भी एस्पेक्ट से। तो वो आई अंडरस्टैंड वेयर इट कम्स फ्रॉम, बट इट इज़ एन अनहेल्दी प्रैक्टिस कि आप उसको उस मकाम पे ले आए। मतलब ये स्ट्रैटेजी नहीं है, दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, इट्स फूलिशनेस। ग्रेटिफिकेशन बिल्कुल डिले करें। लाइक आई सेड, ऑरेंज फ़ोन दिखाने को तो हम भी वही पहले हफ्ते जाके लाइन में लग के दिखा लेते, मगर नहीं, मुझे वो मज़ा बाद में भी मिल जाएगा। मतलब अगर मुझे एक चीज़, क्योंकि मुझे दिखाने का मज़ा नहीं लेना, मुझे यूज़ करने का, तो जब वो टाइम आएगा वो मैं कर लूँगा। तो यू नीड टू लर्न टू डिले ग्रेटिफिकेशन, डोंट फॉलो सूट, डोंट फॉलो द ट्रेंड। दुनिया कहाँ जा रही है, आई हैव टू प्रूव समथिंग। तो अगर आपने एक जैसी उन इतनी सारी भेड़ियों जैसे ही बनना है तो फिर यू आर नॉट स्टैंडिंग आउट, यू आर बिकमिंग द शीप, यू आर नॉट नोटिसेबल दैट वे। सो like I said, your father has seen financial crashes, he's seen unstable markets, he's seen recessions and whatnot. तो उनका ब्रेन की वायरिंग उस तरह की हुई हुई है। बट वॉट यू नीड टू डू इज डोंट अंडर स्पेंड वॉट इज़ यूजफुल। और लग्जरी में मैं ये नहीं कह रहा कि गो ओवरबोर्ड, बट एटलीस्ट देखिए, पैसे का मकसद सेफ्टी नेट होता है, एलिवेशन ऑफ लाइफस्टाइल होता है, एंड ऑफ कोर्स ग्रोथ भी आपको चाहिए। दैट्स हाउ यू बिल्ड वेल्थ। कि आपने सिक्योरिटी की, इन्वेस्टमेंट, अब सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने बॉन्ड्स ले लिए वगैरह वगैरह, ठीक है, आपने थोड़ी सी स्पेंडिंग कर ली जस्ट टू एलिवेट योर लाइफस्टाइल, बट देन आपने फिर ग्रोथ पे, यानी आपने अपने काम पे री इन्वेस्ट किया, या आपने अपने स्किल सेट को ज़्यादा किया ताकि आप उस पर अपनी काम में और मज़ीद से मज़ीद महारत ला सकें, ताकि वो इनएडवर्टेंटली आपको मज़ीद वेल्थ बिल्ड करके दे सकें, राइट? दैट शुड बी द आइडिया। मनी इज़ देयर टू elevate the quality of your life, not the quantity of bank notes in the bank rotting away. अगर आपका पैसा संदूकों में बंद है, पेटियों में बंद है, और सेफ में या बैंक के सेफ में, तो मुझे समझ नहीं आता कि भाई वो वहाँ पड़ा है, मिट्टी खा रहा है, आपके पैसे से बैंक पैसा बना रहा है, आप ही नहीं बिस्किट खा पा रहे। तो ये इस तरह की भी लाइफ जो है ना, which the reason you're asking this question is because you want to break this cycle, and which is very very healthy. But like I always say, a balance of everything is good. ना ज़्यादा scarcity पे जाएं, ना ज़्यादा over luxury पे जाएं, just keep a healthy balance. my meeting का time मेरा हो गया है, and don't save everything, spend wisely. हर चीज़ सेव करेंगे और फिर करेंगे एंड देन लाइक यू आर ऑन योर डेथ बेड एंड यू लाइक मैंने इतना पैसा बनाया, मैंने एंजॉय नहीं किया। दैट्स अ वेरी मिजरेबल वे टू लिव। सो सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल, ग्रोथ, ये तीन चीज़ों को आप रखें। एंड लाइक आई सेड, व्हेनेवर you want to buy something, just question yourself, do I really need this? Is it adding any value to my life or my career or my skill set? So yes, you are allowed टू एन्जॉय लाइफ। भाई हमने तो हर किस्म की इन्जॉयमेंट को हराम के इसमें डाल दिया कि वो शाह खर्ची है, ये दिस है, दैट है। मुझे भी लाइक आई ट्रैवल लॉट, और मैं इस काम से पहले भी जितना हो सकता था कर लिया करता था।
तो my friend who's on the extreme side of frugality, वो ये कहता था कि यार तुम बहुत ज़्यादा खर्च करते हो और ये है वो है, and I'm like यार I keep a healthy balance. I don't want to miss out on life as well. तो मैं किस लाइफ के लिए सेव कर रहा हूँ जो मैंने वो लाइफ ही जीनी नहीं है. तो उसका रिजल्ट ये है कि he hasn't been anywhere except a couple places where he's just about भरे रहो, अलमारियाँ भर दो, and like he's adding nothing to his life. And I feel sad, but this is the way he chooses to live, so that's so be it. So manage करें लाइफ को बैलेंस के साथ, और इतनी एक्सट्रीम लेवल पे जाना अच्छी बात नहीं है, ना ज़्यादा स्पेंडिंग पे ना ज़्यादा सेविंग पे. कीप अ हेल्दी बैलेंस. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.